તો આપણને મળ્યું, હમણાં લીધું ને તમે નામ ભૂલી ગયો તો, હંસાબેન, કે આ મન વચન કાયથી જુદો શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રાપ્ત થયું. 5 વાક્યો પ્રાપ્ત થયા આપણને. 5 વાક્યો યાદ છે કે યાદ કરાવું કે વાત કરું? રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું હંસાબેન છું, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને જે અર્જુનને આ 2 દ્રષ્ટિ આપેલી, એ 2 દ્રષ્ટિથી આપણે બધાને જોઈએ અહીંયા કે આ બધા રિલેટિવથી મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ, સત્સંગીઓ અને રિયલથી બધામાં શુદ્ધાત્મા. તો એ જેટલું શુદ્ધાત્મા જોઈએ એટલું આપણું શુદ્ધાત્મા પદ ખુલ્લું થતું જાય, આપણો આનંદ વધતો જાય, આપણો મુક્તિનો સ્વાદ વધતો જાય. એટલે આત્મવત સર્વભૂતેષુ એવું જે કહ્યું ને એવું આપણને થતું જાય. એટલે બહાર જોઉં છું ત્યારે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માની 2 દ્રષ્ટિથી જોઉં છું. વોક કરવા જઈએ તો આપણે 2 દ્રષ્ટિ સાથે જોતા જઈએ. તો કે છે 1 કલાક જો આવી રીતે જોવામાં આવે તો એટલું બધું અંદર લાભ થયું છે. એટલે શાસ્ત્રમાં એક વાત આવે છે, વધારે કદાચ ખબર નહીં હોય, પણ મહાવીર ભગવાનના સમયમાં આ એક જાતનું મેડિટેશન પણ કહેવાય છે, હાઈએસ્ટ સ્ટેટ ઓફ મેડિટેશન. તો કે પુણ્ય શ્રાવક હતો એનું મેડિટેશન હાઈએસ્ટ ગણાતું હતું. તો કે 1 કલાક જો આ કરવો જોવામાં આવે તો એ લેવલનું આપણને લાભ થયો છે. અચ્છા, અંદર જોઉં છું ત્યારે રિલેટિવ રિયલ કેવી રીતે જોવાનું? તો કે ભૂખ કોને લાગશે? હંસાબેનને કે શુદ્ધાત્માને? હંસાબેનને. એટલે કે રિલેટિવ. આહારી કોણ? તો કે રિલેટિવ. અને હું શુદ્ધાત્મા એટલે જાણનાર. મન કોનું, વિચાર કોને આવે? હંસાબેન. એટલે કે રિલેટિવ છે. હું રિયલ શુદ્ધાત્મા મનને પણ જાણનારો છું, વાણીને જાણનારો છું, કાયાને જાણનારો છું, આહારી આહાર કરે છે. એટલે કે અંદર જોઉં છું ત્યારે આનાથી જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું. અંદરનો ઉપયોગ છે, બહાર રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માનો આ રીતે ઉપયોગ છે. પછી આપણને ખબર પડે ને કે 3 વાર અટકી ગયું, કોણે અટકાવી દીધું? તો કે વ્યવસ્થિત શું છે, દાખલો છે ને. બધું કરવા જતા શું કરીએ કે વ્યવસ્થિત. હમણાં વાત કરીને કે જો પડી તો વ્યવસ્થિત છે. તો કે આ બધું તો આપણને ડિસ્ટર્બ ના કરે, આપણે સમજી જાય કે વ્યવસ્થિત. બહાર કરેક્શન નો પ્રયત્ન બધું કરીએ પણ અંદર સમજી જાય કે આ વ્યવસ્થિત છે. શું છે? એટલે કે આ બધું જે થઈ રહ્યું છે એમાં વ્યવસ્થિત શક્તિ કરી રહી છે. થતા પહેલા આપણે બોલતા નથી, બધો પ્રયત્ન કરી છે, પણ થઈ ગયા પછી આપણે શું કહે છે કે વ્યવસ્થિત. એટલે આપણે આફ્ટર ઇફેક્ટ ના થાય. અને ફાઇલોનો સંભાવથી નિકાલ. તો હું શુદ્ધાત્મા છું, હંસાબેન ફાઇલ 1 થયા ને આપણે પહેલા પડોશી. હંસાબેન નું ધ્યાન રાખવું પડે. શું કરવું પડે? કારણ કે પહેલા પડોશી મિત્ર થયા આપણા. અને પછી હંસાબેનના જેટલા ઋણાનુબંધ સવારથી સાંજ સુધી જે ભેગું થાય હંસાબેનને, એ બધી ફાઇલોનો હંસાબેન નક્કી કરે સંભાવથી નિકાલ કરવો છે. અને આ કરો એટલે શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા થયા કરે છે. આ 5 વાક્યમાં આ બ્રહ્માંડનો કોઈ પણ પરમાણુ આ 5 વાક્યની બહાર નથી. આખા જીવનમાં 5 વાક્ય લઈને ચાલીએ એટલે બધું જ આ ચાલે ને અંદરનું બધું જ સરસ સમાંતરે ચાલે. પંખી જેમ 2 પાંખે ઉડે છે એવું થાય. અંદરનો આનંદ વધતો જાય અને વ્યવહાર પણ સુંદર સરળ થતો જાય અને પાછો બોજો ભાર ઓછો લાગે. એ તો અહીંયા બધા ફ્રાઈડે આવે ને એટલે કે થાકે આવે ભાગો કે છે. ક્યાંક તો કે 5 દિવસના વ્યવહારથી એટલો બધો થાક ને બોજો લાગે કે ના પૂછવું. તો કે આ બોજા વગર વ્યવહાર થઈ શકે એવો છે. એની ચાવી છે. આપણે નથી કહેતા વેરી સ્ટ્રેસ એમ કે શું કે આ મોટામાં મોટી ચાવી છે સ્ટ્રેસ ફ્રી રહેવાની. અનુભવ કરો તો. અને સ્ટ્રેસ કેવું છે, આપણા એમ્સના એક ડોક્ટરનું જોયું, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર છે, એણે રિસર્ચ કર્યું કે ભાઈ 30, 35, 40 વર્ષના લોકોને કેમ હાર્ટ એટેક આવે છે. પહેલા 65, 70 આવતા હતા. અત્યારે જોતા હશો તમે 30, 35, 40. ઘણા તો ઉંમર જતા બી રહે છે, ઘણા કે ટ્રીટમેન્ટ મળે છે તો બચે છે. તો એ લોકોને રિસર્ચમાંથી ખબર પડી, ડિટેલ રિસર્ચ. 2 વસ્તુ એ લોકોએ જોઈ. તો કે જેને અર્લી એજમાં આવે છે એનું બિગેસ્ટ રીઝન ઇઝ સ્ટ્રેસ. પ્રોફેશનલ સ્ટ્રેસ હોય, બિઝનેસનો હોય, ઘરમાં સ્ટ્રેસ હોય, ગમે તે હોય. અને બીજું કે એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું ક્રોમોઝોમલ એજ કે છે ને ઇન્ટરનલ બોડી એજ કેટલી છે. તો કે એક્સટર્નલ બોડી એજ 30-35 દેખાય છે, ઇન્ટરનલ એજ 65-70 દેખાય છે. આ ફેક્ટ છે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આજે આપણે જે સ્થિતિમાંથી જીવન પસાર કરી રહ્યા છે એમાં આપણે જાગવા જેવું છે.
તો ડોક્ટર છે એટલે બોડી માઇન્ડ સોલના ત્રણેયના કનેક્શન ક્યાં છે મને ખબર છે. એટલે નેગેટિવિટીથી રોગો થાય પણ છે, પોઝિટિવિટીથી મટે પણ છે. એટલે જો હું શુદ્ધાત્મામાં આવી જાઉં છું તો બધા સ્ટ્રેસમાંથી મુક્ત થાઉં છું. ખ્યાલ है तो भाई कि आप कुछ बात करिए. इन लोगों के साथ तो मैंने काफी बात किया. I can talk to you also. आपकी बात सुनकर काफी चीजों का मेरा समाधान हुआ. जैसे कि अभी आपने कहा कि शक्ति, जैसे ये गिरा वो बंद हो गया, शक्ति की व्यवस्था कर रही है. तो शक्ति का निरूपण क्या है? वाणी कार्य करती है, लेकिन क्रिया के अंदर तो हाथ है, कोई चीज वस्तु पड़ी हाथ उठा के मेरे रखा तो शक्ति कार्य करवा रही है. तो शक्ति की परिभाषा किस तरीके से? यस, बिल्कुल बढ़िया सवाल है. सो दो चीज બે વસ્તુ સમજીએ. એમનો પ્રશ્ન સમજી ગયા ને તમે બધા? हिंदी थोड़ी तो आवड़े से ना? हिंदी बोलो चालसे? सबको चलेगा मैं हिंदी बोलूंगा तो? ओके, सो हिंदी में बात करेंगे. सो इनके साथ अच्छी. सो दो चीज है, दो प्रकार की शक्ति कार्य करेगी. एक है ये जो हम बात करें व्यवस्थित शक्ति क्या है, तो बोले ये नेचर की जो सब शक्तियां हैं इसमें 6 मूल तत्व है नेचर में. तत्व में परमानेंट एक शुद्ध आत्म तत्व है, चेतन तत्व है. दूसरा उद्गल भी एक तत्व है जिसमें रूप रस स्पर्श गंध गुण इत्यादि गुण है. तीसरा वो एक तत्व है. तीसरा है वो टाइम समय को भी एक तत्व बताया, काल तत्व बोलते हैं. चौथा अवकाश आकाश स्पेस को भी एक तत्व बताया. पांचवा एलिमेंट ऑफ मोशन गति सहायक तत्व. और छठा एलिमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेडी करने के लिए जो तत्व है. तो चेतन आत्मा की हाजिरी है इसमें. बाकी के 5 तत्व मिलजुल के जो कार्य करे उसमें नेचुरल लॉज नेचुरल, जैसे कि बड़ा यहाँ समुद्र है, ऊपर सूर्य है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप बराल होती है, भाप होती है, अपने आप स्वभाव से ऊपर जाती है, स्वभाव से ही उसके बादल बनते हैं, स्वभाव से पानी गिरता है, उसमें कोई डूबर की जरूरत नहीं है. इवन स्टीफन हॉकिंस सेड दिस थिंग, डूबर इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस हैपनिंग्स. तो ये जो हो रहा है वो जो शक्ति कुदरत की काम करे ये सब कुछ इकट्ठा है. 5 तत्वों की वैज्ञानिकता है, संकलन विसर्जन की, नेचुरल लॉ सब कुछ काम कर रहा है. अभी मेरे लिए ये शक्ति काम कैसे कर रही है? तो जैसे मैंने बताया कि शुद्धात्मा की हाजिरी में, अंदर चेतन तत्व की हाजिरी में जब तक मैं शैलेश्वर में कर रहा हूँ ऐसी मेरी बिलीफ है, तो ये उद्गल से जुड़ता है, दोनों नजदीक आते हैं. नजदीक आने पर एक तीसरा विभाग व्यतिरेक गुण खड़ा होता है जिसको एक्स्ट्रा स्पेशल प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं, जो न तो मूल आत्मा के गुण है न तो पदार्थ के मैटर के गुण है, मगर दोनों साथ में आने से खड़े हो गए. जिसमें मैं हूं, मैं कर रहा हूं, क्रोध मान माया लोभ सब खड़े हो गए. उसकी हाजिरी में बाहर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से वो न्यूट्रल अपने खुद के स्वभाव में जब भाव होते हैं मेरे मदद करने का या सबक सिखाने का, तब बाहर के परमाणु खींच के अंदर आते हैं, उसके ऊपर प्रिंट पड़ती है, उसको चार्जिंग बोलते हैं. और जैसे अपने टेराबाइट्स वाली हार्ड डिस्क पर वो स्टोर होते दिखाई नहीं देते मगर डालते, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों पर वो जमा होती, उसका कारण शरीर तैयार होता है. 3 प्रकार के शरीर है बॉडी में. एक स्थूल शरीर है, दूसरा एनर्जी या इलेक्ट्रिकल बॉडी है, तीसरा कारण शरीर है, चौथा मूल आत्मा है. तो ये कारण शरीर तैयार हुआ और नेचर के साथ जुड़ा. जब वो फल देने के लिए टाइम होगा तो उसका इफेक्टिव बॉडी के परमाणु बनेंगे, उसके माइंड बॉडी स्पीच के. वो कारण शरीर लेके आगे भी जाता है और इफेक्टिव बॉडी के परमाणु और नेचर मिला के संयोग इकट्ठा करवाती है. अभी आपने जो बताया शक्ति की परिभाषा, तो ये शक्ति है, कुदरत की एक शक्ति है, नेचुरल रेगुलेटरी सिस्टम, जिसको दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति बताया तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताया. उसमें चेतन की हाजिरी है, चेतन नहीं कराया, चेतन की हाजिरी सिर्फ है. उसमें ये बाकी के तत्वों का विज्ञान कुदरत की शक्ति सब मिलजुल के कार्य कर रही है. ठीक है. और भगवान क्या है? तो बोले भगवान सबको मालूम है, कई बार पूछते हैं बोले अंदर है. तो गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी क्रिएचर विजिबल और इनविजिबल. हमारे सबका जो मूल स्वरूप है वो भगवान है, वो एक अपेक्षा से. तो उसका स्वभाव और कार्य क्या है? तो बोले वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है. उसका मूल स्वभाव देखना और जानना, टू नो एंड टू सी है, और उसका मूल स्वभाव ही आनंद है. तो सत चित और आनंद वो मूल को लागू होता है. तो भगवान का तो अविनाशी है, सत मैंने इटर्नल है, चित मैंने ज्ञान और दर्शन उनके गुण है, देखना और जानना, और आनंद उनका स्वभाव है. उनकी हाजिरी से ये सब चल रहा है, पर वो खुद उसमें कुछ कर नहीं रहे, हाजिरी है उनकी.
और ये शक्ति, ये सब मिलजुल के ऑल नेचुरल फोर्सेस एंड लॉस पुट टुगेदर एंड द इंटरप्ले ऑफ रेस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ द चेतन, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। अभी आपने बताया हाथ जो उठाता है उसकी शक्ति कहाँ से आई, तो चेतन आत्मा की हाजिरी से, जैसे मैंने बताया, ये जो मिश्र चेतन खड़ा हुआ, चेतन की हाजिरी में से नॉन लाइव लाइव मिश्र चेतन, तो उसकी सब शक्ति कार्य कर रही है, जिसमें आंख की शक्ति, कान की शक्ति, इंद्रिया की शक्ति, बॉडी की शक्ति, सब कुछ। मगर वो कब तक, जब तक चेतन की हाजिरी है वहां तक। उसी प्रकार पे वनस्पति, पेड़ पौधों में सब में कार्य हो रहा है। मगर वो जो शक्ति है वो मिश्र चेतन बोला जाता है, चेतन की हाजिरी में जीवन है, क्या है। तो उस प्रकार से एक सब कार्य हो रहा है। और चेतन की जो मूल स्वाभाविक शक्तियां है वो अलग है, और ये जो कुदरती शक्ति है वो सॉर्ट ऑफ नॉन लाइव लाइव या मैकेनिकल शक्ति जैसा काम कर रही है। भगवत प्राप्ति का सरल माध्यम था। भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है। हाँ। तो मेरा ये सब मानना है कि भगवत प्राप्ति को अंतिम प्रसंग मान करके इसके ऊपर नित्य निरंतर चिंतन करना आवश्यक है, लेकिन इसके पूर्व इष्ट की प्राप्ति कैसे हो? हाँ, वही बात कर रहे थे हम इनसे कि भिन्न भिन्न मार्ग हैं, मगर ध्येय एक है। अच्छे काल में तो खुद साधना करता करता जाता था। पतंजलि का अष्टांग योग भी वही है, जो भी बोलो कि भाई धीरे धीरे मैं अपनी प्रकृति की शुद्धि करते करते, मेरे क्रोधमान माया लोग कम करते करते जाओ तो मुझे आत्मा भगवत की दर्शन, समझ और अनुभूति होगी। आज के काल में हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे मन में है, सवाणी में नहीं, वाणी में, समर्थन में, इसलिए ये अपवाद मार्ग निकला, जिसमें ज्ञानी पुरुष के दिव्य वेद विज्ञान के प्रयोग से होते हुए भी मुझे अंदर से मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे भगवत संबंध ज्वाइंट हो जाता है। मेरे खुद के भगवत संबंध की मुझे पहचान होती है, प्रतीति मैंने डाउटलेस कन्विक्शन मिलता है, लक्ष्य मैंने उसकी अवेयरनेस आती रहती है, और उसका अनुभव भी चालू होता है कि मैं मन वचन कैसे भिन्न, मेरा स्वरूप क्या है, देखने जाने शुरू हो जाता है। तो आज के काल में मेरे अनुभव या मेरी समझ या मेरा जो जीवन जैसे जो मैंने पाया, तो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है ये आत्मा अनात्मा के प्रयोग से मेरी खुद की पहचान करना। फिर उसके आनुषंगिक जो है, मैंने बताया 5 सत्साधन हेल्प करते हैं, दूसरी ये चीजों हेल्प करती है, और ये पाने के बाद 5 आज्ञा स्वरूप जिनके साथ डिस्कस किए वो सारे वाक्य है। दैट वर्क्स नाम स्मरण का कितना बड़ा स्वभाव है? नाम स्मरण ऐसे है कि स्टेप बाय स्टेप जो चलते हैं, तो नाम स्मरण हेल्प करता है, इट इज हेल्पिंग। पर नाम स्मरण क्या है? मैं कृष्ण का नाम लूं, राम का नाम लूं, महावीर का, जो भी मेरे, मगर महावीर का स्वरूप जब तक मैं समझता नहीं, जिनका नाम लेता हूं उनका स्वरूप जब तक मेरे समझ में नहीं है, राम या महावीर या कृष्ण अभी मेरी समझ में क्यों नहीं है, और या कब तक नहीं आता है। तो एक बात हम समझे कि कृष्ण भगवान जैसे ग्रेटेस्ट टीचर नहीं थे, सब तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट एंड सोल पुट इनटू दैट। अर्जुन जैसा कोई बड़ा शिष्य नहीं है, सब तरीके से समझने की भी कोशिश है। फिर एक क्षण आती है, वो बोलता है कि अभी मेरी बुद्धि से नहीं समझ सकता, वो समर्पण कर देता हूँ, क्या करता है, और तब जाके कृष्ण कृपा से उसके अंतर आवरण हटाते हैं। तब उसकी दृष्टि में आता है कि भाई मैं उसको सखा सारथी मित्र समझ रहा था, वो तो एक दृष्टि थी, मेरा अंतर चक्षु खुले तो अभी जाके उनमें परमात्मा देख सकता। सो नाम स्मरण इज ए गुड बिगिनिंग, पर जब तक दृष्टि खुली नहीं होती है, तो सभी लोग यही बोलते हैं गीता समझना है तो 2 दृष्टि से समझ सकते हैं, रिलेटिव और रियल। तो सबसे सरल चीज ये है, नाम स्मरण करते करते तो यहाँ तक आए हैं, तभी तो कुछ ये बात सुनने को मिलती है, तभी तो कुछ ये बात अच्छी लगती है। मगर अभी जिनका नाम लेते हैं उनका मूल स्वरूप क्या है, वो कब समझूंगा मैं? जब मेरे अंतर चक्षु खुलेंगे तब जाके मैं समझूंगा कि कृष्ण का रिलेटिव स्वरूप क्या है, रियल स्वरूप क्या है, महावीर का रिलेटिव स्वरूप क्या है, रियल स्वरूप क्या है, राधा भगवान का रिलेटिव स्वरूप क्या है, रियल, और मेरा खुद का रिलेटिव स्वरूप क्या है, रियल स्वरूप क्या है। तो नाम स्मरण स्टेपिंग्स और उपयोगी स्टेप है, मगर अंत में कहाँ जाना है? अनामी की साधना में। तो अनामी की जब पहचान हो जाएगी तब सब स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये हो सके ऐसी पूरी संभावना, पूरा है। सो सब चीज उपकारी है, मगर वो
अनामी तक ले नहीं जा रही है, क्योंकि हमारा समझ दृष्टि नहीं खुली, वो वहां तक पहुंचता नहीं। इसलिए ये भी बोला जाता है कि ध्यान किसका करने का, जानते हैं उसका कर सकते हैं कि अनजान का कर सकते हैं। अभी जो कोशिश करे वो अनजान की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आनंद लिया। और यहाँ हम करीबन 1.5-2 घंटे से बैठे हैं, तो सबको पूछो कितनी बार चित्त बाहर गया? नहीं गया ना? नहीं गया। और ध्यान करने बैठते तो कितनी बार वहां रहता है? तो सब धूप जलाते, दीप जलाते इसलिए कि हमारा चित्त वहां है, फिर भी रहता नहीं है। 2 मिनट तो मुश्किल, 5 मिनट तो बहुत हो गया। और यहाँ 1.5 घंटे से बैठे हैं, जा नहीं रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? चित्त खुद भी सुख की खोज में है, सही सुख और शांति की खोज में है। वहां समझ नहीं है, नहीं मिल रहा है, इसलिए रखने की कोशिश करने पर भी भागता है। और यहाँ नहीं समझते, फिर भी मिल रहा है तो बैठा है। नहीं, आप देखो, मेरी बात गलत है तो बोलो मेरे को। मैं तो साइंस का स्टूडेंट है, हर एक चीज को उसके प्रमाण से देखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ जो बात हो रही वो शुद्धात्मा की, भले आपको समझे नहीं, मगर उसके ऊपर से आ रही। एक यहाँ उन्होंने एसी रखा है, मुझे मालूम नहीं, मगर पवन ठंडा आता है, मैं समझू कि कुछ है। इसलिए शुद्धात्मा की, जहाँ आत्मा परमात्मा की बात है, वह परमहंस की सभा कहलाती है। तो शुद्धात्मा की बात के ऊपर से आ रही, तो सबको इतनी शांति है, स्थित बैठा है, आनंद है। समझे नहीं समझे, सबके लेवल अलग अलग है। देखो, उसमें ऐसा नहीं कि सबकी समझ के लेवल समान है, मगर सबको आनंद है, वो देखो। एक बार एक भैया है, दादा भगवान की इसकी सत्संग सभा चल रही थी, भैया थे, थोड़ी बार बैठे, तो फिर उन्होंने बोला, दादाजी एक बात करूं? तो बोले जरूर। तो बोले, मुझे मालूम नहीं, पर एक बात मुझे अचरज जैसी लगती है कि सबके मुंह पर आनंद कैसे है? दादाजी बोले, इतना देखने का है तो बहुत आ गया, लगने में भी सबके मुंह पर आनंद नहीं होता है। तो ये चीज है। तो ये आज के काल में सबसे सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का। और मैंने भी आपकी तरह बहुत जांच पड़ताल की थी, बचपन से थोड़े संस्कार तो थे, सब कुछ देखा, फिर मिला, बाद में भी देखा, मैंने पहले किया। फिर एक बार मैं लंदन से आ रहा था, तो किसी ने मुझे गीता दे दी, 7-8 घंटे का समय था लंदन से इंडिया के सफर का। तो मैंने देखा सब, और पीछे 3 पेज ब्लैंक थे, उसमें लिखते गया कि इसका परमार्थ क्या है। ये विजन से जब भी कुछ भी खोलता हूँ, तभी समझ में और अनुभव में भी आता है क्या बोलना चाहते हैं, उपनिषद क्या बोलना चाहते हैं, गीता क्या बोलना चाहती है, आगम क्या बोलना चाहते हैं। और सही चीज है कि यदि भगवत स्वरूप मेरा खुद का स्वरूप है, तो वो जानना मुश्किल होना चाहिए कि सरल होना चाहिए? खुद को जानना क्या इतना मुश्किल होता है क्या? दूसरे को जानना मुश्किल होता है, खुद को जानना मुश्किल होता है? ये कैसी बात है? वही बोलता हूँ। तो इसके लिए ज्ञानी पुरुष निमित्त हो जाते हैं, सरलता से अपने को जोड़ देते हैं, अंतरचक्षु खोल देते हैं। अंतरचक्षु खुल गए तो बाद में सब कुछ आसान। सो मैं कई बार हंसता हूँ कि कुदरत ने मुझे आउटर आए EYE, फिर इनर आए EYE, फिर छोटा आए मेरा अहंकार, और बड़ा आए शुद्ध आत्म तत्व, सबको स्टडी करने का एक मौका दिया है। नहीं समझे नहीं आप लोग? मैं आई सर्जन, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई सर्जन। सो बाहर की आय का काम करने का मौका दिया, फिर दादा भगवान मिले तो अंदर की आय का काम स्टडी और अनुभव करने का मौका मिला। और छोटा है तो मैं शैलेश, मेरा अहंकार है, और बड़ा है मेरा शुद्धात्मा है। तो सबका साउंड आई ही होता है ना, सब आई। जीवन का मार्ग प्रशस्त करवाने के लिए जीवन के अंदर दादा गुरु या जो भी हमारे सदगुरु रहते हैं, तो गुरु का अनुसरण, गुरु आवश्यक है मार्ग दिखाने के लिए। और किसी कार्य को करने की क्षमता अगर हमारे में नहीं भी है, उस स्थान पर अगर हमारे सदगुरुदेव की आज्ञा होती है, तो कार्य करने का बल हमें प्राप्त हो जाता है।
बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही बात कही आपने कि गुरु, मगर अभी नेक्स्ट थिंग इज कि गुरु कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे मार्ग में कई प्रकार के गुरु आते रहते हैं। व्यवहार के भी गुरु होते हैं, आत्म मार्ग में भी गुरु होते हैं। व्यवहार में बोतल का बिजनेस करना है तो मनहर भाई को गुरु बनाना पड़ता है। हाँ, जो बोतल में सक्सेसफुल है उसमें क्या गलत बात है, जो सीखना है उसके पास जाना पड़ता है। तो भगवत मार्ग में, ये मार्ग में गुरु कौन, तो बोले सदगुरु ऐसा शब्द है। ये शब्द कॉमन हो गया मगर कॉमन नहीं है। सत जिसको सत का अनुभव है, अविनाशी का अनुभव है, और जो दूसरे को सत का प्राप्ति करवा सकते उनको सदगुरु बोलते हैं। शुभ गुरु नहीं यार शब्द है, सतगुरु शब्द है। तो वो यदि मुझे मिल जाए, इसीलिए मैंने ये भावना की कि मुझे मेरे खुद के भगवत स्वरूप को जानना है। उसके लिए ऐसे में मुझे कोई अनुभवी पुरुष मिले जिनको आत्म अनुभव हो, जो आत्म योगेश्वर जैसे हो, और उनके मार्गदर्शन से मैं मेरी प्राप्ति कर सकूं। ठीक है, तो सदगुरु होने चाहिए, वो बात सही है, मगर वो ऐसे होने चाहिए कि जिनको खुद को अनुभव है। क्या है? और ऐसे गुरु होते हैं, वो सही अर्थ में किसी के गुरु होते भी नहीं है। उनको वैसा ईगो भी नहीं होता है कि मैं किसी का गुरु हूँ, किसी को शिष्य बनाते भी नहीं है। वो सबको अपने जैसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबको अपने जैसा बना देते हैं। प्लीज, Why is Guru important in one's life? in one, Why? આપણે ગુરુ કેમ બનાવવાનું? yeah, true. ગુરુ એટલે ગાઈડ, બરાબર. હવે મેં કહ્યું એમ કે મારે વ્યવહારમાં પણ કશું જોઈતું હોય, કામ કરવું હોય, તો મને કોઈ ગાઈડન્સ જોઈએ કે ના જોઈએ. તમારે કોઈ સારા ડોક્ટર પાસેથી જવું હોય, તમને તકલીફ થઈ તો કોકને તમે પૂછો ને કે ભાઈ કોણ સારું છે, કોનો અનુભવ છે, કોઈ તપાસ તો કરો કે ના કરો. એટલે ટૂંકમાં વ્યવહારમાં પણ કોઈ ગાઈડન્સની જરૂર તો પડતી હોય છે આપણને. એવી રીતે નિશ્ચયનો જે માર્ગ છે આત્મ પ્રાપ્તિનો, એમાં મેં તો જોયું નથી. હું મારી જાતે જઉં તો મને મળશે કે નહીં મળે, કે આમ તેમ ખોવાઈ જઈશું, બને કે ના બને. તો જેને અનુભવ છે એવું કોઈ મને માર્ગદર્શન મળે તો મારો માર્ગ ઈઝી થઈ જાય. શું થઈ જાય? હું મારી જાતે કરવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરી શકું, પણ દેર આર ઇનફ રિસ્ક કે હું કદાચ આમ તેમ થઈ જાઉં. કારણ મેં જોયું, જે વસ્તુ જોઈ નથી, જાણી નથી, અનુભવી નથી, એવું કેવી રીતે જાતે કરીશ? હવે એક ગમ્મત વાળો દાખલો આપું તમને. તમને કે આ કોઈને કેટરેક્ટ આવ્યું છે મોતીઓ, તો જાતે કાઢી લઈ શકે? કેમ ના કાઢી લે? ગૂગલમાં બધું લખેલું છે યાર. ના કાઢે. કેમ? તો કે ડોક્ટર જોઈએ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નિમિત્ત જોઈએ. શું જોઈએ? અને ત્યાં એને ખબર છે કે હું જાતે કશું કરવા જાય, દવાઈ નહીં લેતો જાતે, ગૂગલમાં વાંચે ખરો બધું, પણ પછી પૂછે ડોક્ટર કેમ? તો કે આ ઊંધું થશે તો આ તો બહુ છે. એટલે ટૂંકમાં આ રસ્તો એવો છે કે આપણને ગાઈડન્સ વગર પ્રોપર પ્રાપ્તિ થઈ શકવી સંભવ નથી. છત્રીજી વાત કે હું શૈલેષ છું, એ અહંકાર છે મારો અને હું કરું છું. તો અહંકારને કાઢી શકે ખરો? અંધારાને કાઢી શકે? હું શૈલેષ છું અને હું કરું છું, એટલે જ્યાં હું છું નથી જાણતો, એટલે આમાં બેઠો છું. તો અંધારાને કાઢી શકે? નહીં સમજ્યા? કોઈ અજવાળું જોઈએ કે જે મારો અહંકાર એટલે અજ્ઞાન કાઢી આપે. એટલે બધી રીતે તપાસવામાં આવે ને, તો આમાં એવું આપણને કોઈક જોઈએ કે જેનો નીકળ્યો છે, જેનો પ્રયોગ સિદ્ધ થયો છે, તો એ રસ્તે આપણનો પ્રયોગ સિદ્ધ થાય. જેના ક્રોધમાન માનો ચાલી ગયા છે પ્રયોગથી, તો આપણા જાય, નહીં તો ના જાય. સમજે? કારણ કે હું હજી સાદો દાખલો આપું. ઉપરથી નીચે સુધી મને કોઈ દોયડાથી બાંધી દીધો છે, એટલે હું બંધનમાં છું. ગમે તે અજ્ઞાનના બંધનમાં, કર્મના બંધનમાં, ક્રોધમાન માયાલોભના બંધનમાં, તો જાતે છૂટી શકું? એ તો આ ભારતીબેન એક છેડો છોડી આપવો પડે, પછી આમાં હું કહીને છૂટી જાઉં, પણ એક છેડો તો છોડવો પડે ને કોઈ. એટલે કે મુક્ત કરાવનાર કોણ હોય? તો કે જે મુક્ત હોય તે આપણને મુક્ત કરાવી શકે. જે પોતે મુક્ત થયા છે તે આપણને મુક્તિનો રસ્તો કે દાન આપી શકે. પોતે જ બંધાયેલો હોય તે કેવી રીતે આપણને મુક્ત કરાવી શકે? હા, એ વાત મોટી કરી. ના, વાત તો સાચી જ છે, કેવી રીતે ખબર પડે? એટલે બે વાત છે કે પહેલું મેં કહ્યું કે આપણી પાસે શું સત્તા છે કરવાની, તો કે ભાવ સત્તા છે. શું છે?
એટલે સાચા દિલથી આપણે ભાવ રાખીશું કે મને એવા કોઈ મળે કે જે મને ખરેખર મારી હું કોણ છું એની પ્રાપ્તિ કરાવે, એમાંથી ખરેખર મને મુક્તિ, એ જો સાચા દિલની સતત પ્રાર્થના હશે તો કુદરત મોકલશે એક વસ્તુ. હું તો ક્યાં શોધવા જવું આવડા મોટા દુનિયાના જંગલમાં, કેટલા બધા પાટિયા બોર્ડ તો મારેલા જ છે કે અમે ગુરુ છીએ અથવા તો સારા છે, બધા કોમ્પિટિશનમાં પણ છે એકબીજાની. એટલે પહેલી તો મારી શરૂઆત મારા દિલની ભાવનાથી થાય છે. શું થાય છે? અને એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાવ થકી ભક્તિ કરવાથી પ્રભુ પણ સન્મુખ આવી મળે. જો તમારું દિલ સાચું હશે તો ભગવાન તમારે ઘેર આવશે એવું કહેવાય છે. તો આ કળિયુગમાં આ પહેલી રિક્વિઝિટ છે. પછી મારું બધું મિક્સચર હોય કે મારે તો, હું તો શું કરતો હતો ખબર છે, ભગવાન પાસે જવું ને પરીક્ષામાં સારા માર્ક આવે એવું કરજો એવું કહેતો હતો. પછી આગળ વધ્યો તો એમ કહેતો મેડિકલમાં એડમિશન મળે એવું કરજો. તો ભગવાન કે તથાસ્તુ. ભગવાન શું કહે છે? તથાસ્તુ. એટલે હવે ભગવાન પાસે જઈને કહેવાનું કે હે પ્રભુ, તમારું સ્વરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ છે, પણ મને ઓળખાતું નથી. તમારું સ્વરૂપ અનંત જ્ઞાનવાળું, અનંત દર્શનવાળું, અનંત સુખવાળું ને અવિનાશી છે, એવું જ મારું છે. મને કોઈ નિમિત્ત ભેગું કરી આપો કે તમારા મૂળ સ્વરૂપ જેવું મારું સ્વરૂપની ઓળખાણ પડે એનો અનુભવ કરાવે. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. સેકન્ડ સ્ટેપ, ઓળખાણ કેવી રીતે પડે? તો આપણું હૃદય અરીસામાં પડઘવું પડે. શું પડે? જ્યાં આપણું દિલ ઠરે, જ્યાં આપણું દિલ ઠરે, જ્યાં ખંડન મંડન ના હોય કે આ સારું ના ખોટું, ના બરોબર ને ના બરોબર, એવું કશું જ જોવા ના મળે તમને. અને તમને લાગે કે કોઈ વસ્તુની જ્યાં અપેક્ષા નથી, માગવામાં કે અપેક્ષા જ નથી, પૈસાની નહીં, શિષ્યોની નહીં, ભીખ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં લક્ષ્મીની ભીખ નથી, માનની ભીખ નથી, શિષ્યોની ભીખ નથી, જે બધાથી મુક્ત છે અને છતાં આનંદમાં રહે છે, તો આપણે સમજવું કે કંઈક છે. એક વ્યાખ્યા એવી છે, અત્યારે આપણે બધા આનંદમાં છીએ થોડા ઘણા. અચ્છા, આનંદ 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી આવે છે? ના. કોઈ મ્યુઝિક વાગતું નથી, કોઈ સારા સીન નથી, સિરિયલ નથી, તો કે જે આનંદ 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી નથી આવતો. અચ્છા, ક્રોધમાનમાં એ લોકોમાંથી આવે છે? કોઈ પડે માના આપે એટલે આનંદ છે? ના. એ લોક પોસાય છે? તો કે ના. તો કે જે આનંદ 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી નથી આવી રહ્યો, જે ક્રોધમાન માયેલો રાગદ્વેષમાંથી નથી આવી રહ્યો, એ આત્મામાંથી આવે છે. શું કરે છે? તો આપણને અનુભવ થાય કે આપણે જરા ટ્રાય કરી જોવાનું કે આ આઈટમ સારી લાગે છે, થોડું ચાખી દેજો. પછી દિલ અંદર આત્મા બોલશે. શું બોલશે? આત્મા ખરેખર સ્વ પર પ્રકાશક છે, જે ચોખ્ખો છે, જેને લાલચ નથી, જે સરળ છે, એના અંદર પડઘો પડે છે. શું પડે છે? કે આ મારું છે, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ, so this is what which will take me up. અચ્છા, બીજી વાત કે જ્યાં નાના મોટા બધા બેસી શકે છે. અત્યારે આપણે ડિફરન્ટ એજના બેઠા છે ને, છતાં બધાને આનંદ છે ને. એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ક્લાસ ચાલતો હોય ને તે અમુક ઉંમરના બે બીજો ભાગ લે. શું બને? એટલે કે જ્યાં નાના મોટા બધાને આનંદ છે હૃદયનો, એ પણ બધું બહુ પેરામીટર્સ છે. થર્મોમીટર તો બધા બહુ જાતના છે કે જેનાથી ખબર પડે કે કંઈક અહીં સાચું લાગે છે. અચ્છા, જ્યાં બધાને પોતાનું લાગે, એ ગમે ત્યાંથી આવતો હોય, ધર્મમાં માનતો હોય કે ના માનતો હોય, ગીતામાંથી આવતો હોય, વેદમાંથી આવતો, આગળમાંથી અથવા તો કઈ માંથી ના આવતો હોય, ખાલી સાદું મારા જેવું હોય, બધાને જે આનંદ લાગે છે આનો જો કંઈક સાચી વાત છે. એટલે એના ઘણા બધા પ્રમાણ છે. અને છેલ્લી વાત, કૃષ્ણ ભગવાને બી કીધું કે જે ભેદ ટાળે એનું નામ જ્ઞાન. એ ભેદ પાડે નહીં, ભેદ ટાળે. શું કરે? કોઈ જગ્યાએ ભેદ પાડતા નથી કે આ તમારો ધર્માઓના ધર્માઓના ઊંચો નીચો, કોઈ ભેદ નથી ત્યાં. પણ ભેદ બુદ્ધિ દૂર થાય છે. આ દ્રષ્ટિ બધાને એક સરખી રીતે જોઈ શકે છે. તો સમજવું કે કંઈક છે. હવે જોયું નીચે પર સારું, મને ગમ્યું. તપાસ તો કરવી પડે ને. આજ તો આ દુનિયામાં ફસાઈ પડે એવું છે. ક્યાં છે? અને એક જ અવતાર છે, એમાં કેટલાક પછી કરીએ, કેટલી દુકાને તપાસ કરવા જઈએ, એવી કરો. સો આ વાત કેવી છે કે આપણું પુણ્ય સારું હોય અને મળી જાય ને કોઈ, તે તો કરુણામૂર્તિ હોય છે. આપણે પણ બહુ કસરત ના કરાય, જાણે તમારી શક્તિ હોત તો તમે કરી જ લીધું હોત. એટલે આપણને સરળ વસ્તુ ये भाई साहब ये क्या है, कितने सारे पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ प्राप्त होता है.
कितने सारी समझ इकट्ठे करके थोड़ा मर्म मिलता है, कितना सारा मर्म निकाला तो मर्म का अर्थ मिलता है। और ये ऐसे होते हैं तो मर्मार्क अपनी हथेली में रख देते हैं कि कुछ समझो नहीं समझो आइसक्रीम का स्वाद तो है। ये मर्म का अर्थ ले लिया, जाओ चले जाओ। આપણા માટે બહુ અઘરું રાખતા નથી, સહેલું કરી દે છે। પણ જ્યારે સમજ, હું તો આ 46 વર્ષ પછી વાત કરું છું તમને, એ બધું જોયું કે આ શું છે, આ બધું મેળવી જોયું તાળો, તો કે મર્મનો અર્થ હથેળીમાં આપી દીધો। કેમ? તો કે એમને દેખાયું પ્રાપ્ત છે અને એમની ભાવના એક જ છે કે મને પામે। શું છે? પહેલા ભગવાનને પગે લાગતા ને ત્યારે આમ જ પગે હાથ જોડીને પગે લાગતા, પછી ભરતાનંદજીનો સત્સંગ સાંભળવાનો કે તમે ભગવાનને પગે તો લાગો પણ તમે શું કેમ જોઈને પગે લાગતા। હવે ખ્યાલ આવ્યો કે ભગવાનને પગે લાગ, ભગવાનને કહીએ કે જેમ તમારા બધા આવરણ ખસી ગયા છે, કામ ક્રોધ લોભ મોહ બધા, તેમ અમારા પણ ખસે। જેમ તમને આત્માનો અનુભવ થયો ને તમે નરમાંથી નારાયણ થયા, તો અમારા પણ એમ કે આત્માનું ઉઘાડ થાય એવી સત્ય ને તમારા સ્વરૂપમાં મારા સ્વરૂપના દર્શન ઓળખાણ થાય। બરાબર। એટલે એ રીતે હવે પ્રાર્થના થાય। ये विश्व में सुख और शांति में बेचालिटी का जितनी છે આમાં મળશે। ये विश्व में सुख बेचालिटी का આખું ને પછી પાછી વાત। બેને પદ તૈયાર કરેલું હતું, હા તો કઈ બેન ગાવાના હતા। હા તો બોલો, એમને કહો તો એમને ના, હા પ્રયોગ ચોક્કસ થાય, આમાંથી 5 જણ તૈયાર થાય તો આપણે કરીએ। હા થોડુંક મોડું થશે કારણ કે પેલા સાહેબ મને લઈ આવે, એટલે આપણો મંદિરમાં સત્સંગ કેટલા વાગ્યાથી છે? 5 પતી જવી જોઈએ। પહેલા કોઈને કોઈ તૈયાર છે પહેલા હા એ તો ફરી સામાયિક થઈ શકે, લીધેલું એ ફરી પણ બેસે તો સામાયિક થાય ને, સબક હા, એ તો પણ ખરું. બોલવાની જરૂર નહીં। નવા કોઈ તમે અમારા થ્રુ થઈ જશો પછી ના હું શું કરવા, ગુરુ એટલે ના ગુરુ એટલે ભારે ભારે તો હું બોલતા તમને ડૂબાડું ને ભારે એટલે એ જરાક સમજ આપો. ના, આમાં કોઈ કોઈનું ગુરુ થતું નથી। એટલે વ્યવહારની ભાષામાં ગુરુ એટલે ગાઈડ કહેવાય, પણ અમે કોઈના ગુરુ નથી। એક વસ્તુ કારણ અમારું આ ઓરિજિનલ નથી। ઓરિજિનલ એટલે શું કે ભાઈ જેમને અંદર પ્રગટ થયું મૂળ તત્વ, મૂળ તો મહાવીરનો માર્ગ ચાલી રહ્યો છે 21,000 વર્ષ પછી મહાવીરના માર્ગમાં વચ્ચે થોડું આવરણ આવ્યું એટલે દાદા ભગવાનની અંદર પ્રગટ થયું। તે આ અંબાલાલભાઈ નહીં પણ અંદર જ્ઞાન સ્વરૂપે એટલે એમનાથી મળ્યું। એટલે અમે તો એમના કૃપાથી ને એમના દૈવી યોગથી આ કાર્ય થાય છે, અમે એમાં હોતા નથી। એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેવું કામ કરીએ કે એટલું બી નહીં, અમારો આઈ ના હોય ત્યારે કામ થાય। એટલે કામ દાદા ભગવાનની કૃપાથી થાય છે અને એનાથી આગળ મહાવીરનું શાસન ચાલુ છે। એટલે દાદા ભગવાને પોતે કહ્યું કે અમે તો શાસનના સરદાર છીએ। 5100 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ ભગવાન થયા, પછી એમણે કહ્યું કે યુગે યુગે સંભવામી, અમુક હજારો વર્ષ ચાલે પછી પાછું થોડું આવરાય પાછું કોઈ આવે તો 2526 વર્ષ પહેલા મહાવીર આવે, શાસન એમનું। અને અત્યારે દાદા ભગવાનની અંદર જે દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા વ્યક્તિ સ્વરૂપે નહીં, જ્ઞાન સ્વરૂપે, એમનાથી આ થાય છે। એટલે અમે ગુરુ થઈએ તો અમારી ઉપાધિ થાય અને અમે એવી ઉપાધિ ના વધીએ, પણ આપણે બધા સરખા એટલે અમે નિમિત્ત બની શકીએ છીએ। શું છે તો જો કાલે ઈચ્છા હોય તો આપણે કંઈક ટાઈમ સેટ કરીએ, 2 થી 4 કે 2:30 થી 4:30 કે કંઈક સેટ કરાય, દેટ વી કેન ટ્રાય। તો કોઈ ઈચ્છા હોય જે લોકોને બાકી હોય તો તે ને ફરી બેસવું તો તે, કે અમે કાલનો દિવસ અહીંયા છીએ, પરમ દિવસે કદાચ થોડું સવારે રહીશું, પછી સવારે નીકળી જવું પડશે ડલાસ લેવા। એ તો વી કેન ઓલવેઝ એડજસ્ટ, પણ કાલે જો ઈચ્છા હોય તો લેટ્સ કીપ 2:30 થી 4:30 ઇફ પોસિબલ। હું તમારે તો પોસિબલ છે, તમારું લોકોની વાર એટલે લોકોને અનુકૂળતા હોય, ઈચ્છા હોય તો એ તો કરીશું, આવી જઈશું સવારે।
એ તો વીકેન્ડ થશે તો માઇન્ડ અપ કરી આવતી થોડું એડજસ્ટ કરી વીકેન્ડ કરું સવા બે અઢી એટલે કે અઢીથી 6:30 પણ સવા બે રાખે હા એટલે સવા બે રાખીએ તો સવા બે થી 4:15 એટલે થોડું 15 મિનિટ આમ તેમ થાય તો વાંધો ના બદલે થોડું દાદા ભગવાનના વાણી અજવાળે ચોખંડ બ્રહ્માંડના દાદા ભગવાનના વાણી કિરણ અજવાળે ચોખંડ બ્રહ્માંડના નિશ્ચયના સમભાવે ઉકેલના ગુઢ સૂત્ર ધ્યાનના નિગુઢ સુતાત્મના વ્યવહાર નિશ્ચયના સમભાવે ઉકેલના ગુઢ સૂત્ર ધ્યાનના નિગુઢ સુતાત્મા સિમંદરની ભરતીને કોઈ દીરો કાળના સમંદરની ભારતીને કોઈ દીનો કાળના સમયની સવારી કોઈથી બંધાઈના સમયની સવારી કોઈથી બંધાયા પ્રેમ અને પુષ્પ બેવું સ્વયંભૂ છે વિશ્વમાં પ્રેમ અને પુષ્પ એવું સ્વયંભૂ છે વિશ્વમાં કાદવના ફૂલ પ્રફુલ્લિત મુખ અરવિંદના કદના ફૂલ પ્રફુલ્લિત મુખ અરવિંદના વિરાગીને વંદના ઉર્વગામી અર્ચના વિરાગીને વંદના ઉર્વગામી અર્ચના ચેતન ચેતનની એક જ ઝંખના ચેતન ચેતનની એક જ ઝંખના વનરાના બાળકો ફૂલ ગાણા જામે વનરાના બાળકો ફૂલ ગણા જન્મે ફૂલડા ઝંખે છે જનની એક જ લગ્ને ફૂલડા ઝંખે છે જનની એક જ લગ્ને નાના દૂધે પોષ્યા ગણા બાળકો છે તમને જ્ઞાન દૂધે પોષ્યા બાળકો છે તમને વાત્સલ્ય મૂર્તિ તમે એક જ અમને વાત્સલ્ય મૂર્તિ તમે એક જ અમને બાળકને માનું મિલન હૈયાનું વેત વહન બાળકને માનું મિલન હૈયાનું હેતવહન છલકંતા દૂર સુકલે ચેતનની મહેકી મોસમ છલકંતા દૂધ સુકલે ચેતનની મહેકી મોસમ લખરે 84 ની ઘડી ગઈ સ્પંદના લખરે 84 ની ટળી ગઈ સ્પંદના ચિરંતન ચેતના સહાત્મા સપૂર્ણા ચિરંતન ચેતના સહજાત સ્ફૂર્ણા અમારે અંબાલાલના દાદા ભગવાનના
अमरे अंबलालना राजा भगवानना वाणी जुबारे चौखंड ब्रह्मांड वाणी किरणजवाणी चौखंड ब्रह्मांडना। तो ये बात हो रही थी कि भाई मैं भाव तो शुद्ध रखूं, मगर ये व्यवहार में कुछ न कुछ गलती तो हो जाएगी, होती है, अपनी मेल भी होती है, सबकी हो जाएगी, सब सर्कमस्टेंसेस से आते हैं। तो हमें खटकन भी रहती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट इट बग्स अस, किसी को दुख हो गया, किसी के प्रति अभिप्राय नेगेटिव हो गया, किसी से चुप, तो क्या करें? लोग बोलते हैं फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स, मगर वो वैज्ञानिक रीत के बिना हो नहीं सकता है। मैंने उनको दुख दे दिया और मैं बोलूं कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, तो हो जाएगा? नहीं होता है। इसलिए वितरागों ने प्रयोग दिया, छोटा सा साइंटिफिक प्रयोग है, इसको हम इंग्लिश में कन्फेशन, एपोलॉजी, रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, मगर टेक्निकल भाषा में उससे ज्यादा है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ऐसे शब्द है। तो उसका मतलब क्या है और क्या उसका वैज्ञानिक महत्व या वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? तो बोलो, मान लो मेरे से मनहर भाई के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो गया जो पहले मुझे खटकता है, तो मैं क्या करूंगा कि कोई प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, तो आप किसी को जिनको भी मानते हैं, प्रत्यक्ष राम की साक्षी में, प्रत्यक्ष कृष्ण की साक्षी में, ये बोलने से अपना अंतस्करण जो विकसित हुआ था वो सम होने लगता है, क्योंकि भगवान की साक्षी हाजिर की ना हमने। ये मन वचन का है, मनहर भाई के नाम और नाम की माया, और उनके अंदर कर्मों से मुक्त ऐसे ही शुद्धात्मा भगवान मेरे से आपके साथ ही दुख रूप व्यवहार हुआ। ये जो मेरी गलती में अंदर भगवान की साक्षी में जाहिर करता हूँ उसको आलोचना बोलते हैं। जैसे है ऐसा जाहिर किया उसको कन्फेशन, ये लोग कन्फेशन बोलते हैं, मगर इससे ये सूक्ष्म है आलोचना। और मैं माफी मांगता हूँ, मैंने वापिस आया। क्रमण हम सब लोग बैठे हैं, नॉर्मल व्यवहार है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है क्लींसिंग प्रोसेस, क्योंकि वो तो व्यवहार सबके साथ चलता रहता है सुबह से शाम तक, जिसमें किसी को दुख नहीं होता है, किसी के लिए नेगेटिव अभिप्राय नहीं है, ऐसी कुछ गलती नहीं है, तो कोई उसका क्लींसिंग जरूरी नहीं है। मगर अतिक्रमण हुआ, कुछ गलती हो गई, तो मुझे मैंने वापिस आना है। तो मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आगे न हो ऐसा नक्की करता हूँ, उसका नाम प्रत्याख्यान है, रिजोल्यूशन, कि भाई मुझे ऐसे वापस दुखपूर्ण व्यवहार न हो ऐसा मैं नक्की करता हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। ये अंदर ही होती हुई प्रक्रिया, मिनट 2 मिनट लगता है, मगर उससे फायदा क्या होता है? पहले तो मेरा बोझ हट जाता है, क्योंकि मैंने मेरी गलती को अंदर से सुधार दी। तो जो गलती मुझे बोझ रूप होती थी, अभी मेरी नॉर्मल सी और हार्मनी वापिस हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा, कर्म से भी मुक्त होगा, मेरे बोझ से भी मुक्त होगा, और वो मेरे वाइब्रेशंस कॉर्डलेस फोन की तरह सामने जाएंगे, उनका मन भी साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटा सा मगर अद्भुत महत्व का वितरागों का प्रयोग है। पूरा वितराग विज्ञान है, पूरा वितराग विज्ञान है, जिसमें ये छोटा सा प्रयोग है, जो हम दिन ब दिन के जीवन में जीते हुए कहीं न कहीं कुछ होता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सो 2 चीज कई लोग बाद में आए, इसलिए त्रिमंत्र बोल के उसको समझाता हूँ, और एक शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलते हैं। तो ये 5 जो सत्साधन दिए थे, उसमें से 2 सत्साधन है, और उसका महत्व भी बताता हूँ, और फिर जैसे आगे सब लोग बोलेंगे। यदि कल समय निकाल सकते हो तो जरूर निकालना। इट विल बी एन वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, एंड द अपॉर्चुनिटी डजंट कम ऑफन। जस्ट हम्बल सबमिशन है। ये मैं मंत्र बोलता हूँ, फिर उसकी समझ देता हूँ कि क्या उसके पीछे साइंस है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्वसाहनं, एषो पंचन मुक्कारो, सर्वपावपनाशनं, मंगलानं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
आमतौर पे ऐसा लगे कि ये 3 धर्म के 3 मंत्र इकट्ठे किए हैं, मगर दादा भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश में देखा कि 3 अलग अलग मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है। ना समझ के कारण लोगों ने उसका विभाजन कर दिया। तो 3 साथ में बोलने से बहुत अमोघ शक्ति का साधन है। 5 बार सुबह में बोलेंगे, महसूस होगा कि अंदर से एक अलग ही शक्ति मिलती है। इस शक्ति का स्रोत है, उसके पीछे पूरा विज्ञान है। क्या विज्ञान है? तो बोले नमो अरिहंताणम। अरिहंत मैंने कौन? तो बोले मनुष्य के फॉर्म में जो उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है वो क्या हो सकती है? कोई लोग इसे अरहत बोलते हैं, कोई परब्रह्म बोलते हैं, कोई पूर्ण पुरुषोत्तम, जो भी शब्द यूज करो। तो बोले प्रकृति के क्रोधमान माया लोग रागद्वेष रूपी सभी अशुद्धियां चली गई है, इसके कारण अंदर परमात्मा प्रकाश पूरा खुला हो गया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड रिफ्लेक्ट होता है। देखो तो ये महावीर या जो पूरे पूर्ण पुरुष के प्रकाश में उन्होंने जो देखा, आज का साइंस अभी वो देख रहा है। उन्होंने जो देख के बताया वो अभी वो पूरे ज्ञान दर्शन परमात्मा के प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड दिखे, इतना खुला हो जाता है। ऐसे जो जीवंत है उसको अरिहंत बोलते हैं। उनको नमस्कार करने से क्या फायदा है? तो बोले मुझे यदि दर्शन करने का भी मिलेगा तो मेरे सब आवरण हट जाएंगे, मेरा परम पद अंदर से परमात्मा खुले हो जाएंगे। ये नमो अरिहंताणम का महत्व है। तो बोले आज यहाँ ये पृथ्वी पर कोई ये स्थिति में है, तो ज्ञानियों के मत अनुसार यहाँ अभी वर्तमान में कोई ये स्थिति में नहीं है और पहुंच भी नहीं सकते। महावीर के निर्वाण के बाद अभी यहाँ कोई ऐसी स्थिति में नहीं है। दादा भगवान भी थोड़े कम स्थिति में रह गए थे, 4 डिग्री का मैंने बोला। तो बोले अभी कहाँ है? तो बोले उनके ज्ञान के अनुसार ऐसा दूसरा क्षेत्र है जो महाविदेह क्षेत्र बोला जाता है। वहां पर 20 है ऐसे, जिसमें सिमंदर स्वामी हमारे क्षेत्र से नजदीक है। तो बोले उनको लक्ष्य में रखते हुए यदि हम नमो अरिहंताणम बोलेंगे तो प्रत्यक्ष ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध हो चुके, मुक्त हो चुके हैं, उनको मेरा नमस्कार है, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। राम सिद्ध हो चुके हैं, महावीर सिद्ध हो चुके हैं, हनुमान सिद्ध हो चुके हैं, 3 पांडव सिद्ध हो चुके हैं। तो सिद्ध मैंने मुक्त आत्मा परम पद, वो मेरा लक्ष्य है। नमो आर्यणम, आचार्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य मैंने कौन है? भगवत मार्ग, जिनको खुद को आत्मा अनुभव है, प्रकृति और आत्मा का पूरा अनुभव है और दूसरों को जो गाइड करके सिखा सकते हैं, वो आचार्य है। जो अपने गुरु की बात चल रही थी अब अभी, वो दशा की बात है, व्यक्ति की नमस्कार नहीं है। नमो वज्रयानम, सीनियर टीचर। तो कौन? तो आत्मा दृष्टि की प्राप्ति हुई है, खुद कंप्लीट होने के लिए साधना, अंतर साधना करते हैं, दूसरे को एनकरेज करते हैं, ये रास्ते पर चलोगे तो आपको भी आपका परम सुख मिलेगा, वो उपाधि है। नमो लोवे सर्व सवनम, सर्व साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु मैंने वस्त्र से नहीं कि भाई घर त्याग किया, ऐसा नहीं। आत्मदशा की साधना करता है वो साधु। मैं खुद कौन हूँ? दृष्टि प्राप्त हुई, वहां से अंतर साधना साधु दशा प्राप्त हुई, गृहस्थ हो या त्यागी। केशव पंच नमुक करो, ये 5 को नमस्कार करने से सर्व पाव पणसु, सर्व पाप मैंने अशुद्धियों का नाश होता है। मंगलानंच सौवेसिन पडमम हवे मंगवे, विश्व की या ब्रह्मांड की जो सर्व मंगलमय वस्तु है वो सभी में ये उत्कृष्ट मंगल है, ऐसा ये पहला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तो सभी बोलते हैं हम लोग, मगर ओम का पूरा अर्थ हमें मालूम नहीं है। ओम का अर्थ क्या? उसमें 5 अक्षर है, अ आ उ और म। अ मैंने अरिहंत, दूसरा अ मैंने अदेय सिद्ध, तीसरा आ मैंने आचार्य, चौथा उ मैंने उपाध्याय, 5वां म मैंने मुनि। ऊपर के 5 नमस्कार संक्षिप्त में बोलना है तो ओम होता है, और उसके ऊपर एक अर्धचंद्र बिंदी और बिंदी रखते हैं। उसका मतलब ये है कि जब तक मेरे पास मेरी सही दृष्टि नहीं है, मैं खुद कौन हूँ, वहां तक मैं 5 को नमस्कार करूंगा तो ओम बनेगा। जब मेरे पास दृष्टि है कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा, व्यवहार दृष्टि से शैलिश होकर निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ, दृष्टि प्राप्त होने के बाद जब मैं 5 को नमस्कार बोलता हूँ तो ओंकार बिंदु संयुक्तम, ऊपर अर्धचंद्र बिंदु और जो बिंदी रखते हैं। और एक श्लोक है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदम कामदम चाहिए। तो वो मुक्ति का सीधा कारण है, डायरेक्ट फ्लाइट है। मैं वाया फिनिक्स होके आया, ये डायरेक्ट फ्लाइट होती है, एक ही नॉन स्टॉप, मैंने सीधा रास्ता है। नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव मैंने जो नर में से नारायण हुए हैं, जिनकी प्रकृति में सभी पॉजिटिव मैंने धर्मयुक्त शक्तियां है, ऐसे कृष्ण भगवान ये काल के अंतिम वासुदेव थे। ओम नमः शिवाय। ओम तो समझ गए। शिव मैंने शंकर भगवान तो प्रतीक है। शिव मैंने जिनका खुद का आत्म कल्याण हुआ है, जिनका अहंकार निशेष हो गया है और दूसरों के कल्याण का ही जिनको भाव है,
उसी के लिए जीते हैं, ऐसे कल्याण स्वरूप आत्म अनुभवी पुरुषों को श्री बोलते हैं। तो ये 3 मंत्र में आत्मदशा दृष्टि प्राप्त हुई, वहां से संपूर्ण पद तक के पुरुषों को नमस्कार है, वो ब्रह्मांड में हाजिर है। कनेक्ट होने से हमें शक्ति भी मिलती है, हमारा उत्थान भी होता है। तो दादा भगवान ने बताया कि 3 मंत्र यदि आप साथ में बोलेंगे, वो पूरा एक ही मंत्र है, तो आपको पूरा फल मिलेगा, निष्पक्षपातीपन उत्पन्न होगा, मतार्थ भी टूट जाएगा और परम सत्य मतार्थ में होता नहीं है। तो ये बहुत लाभदायी है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान में देख के बताया। आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हैं, बोल सकते हैं 5 साथ। और दूसरा, भगवान को तो हम जाके वंदन करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो इनडायरेक्ट वर्शिप है। क्या है? क्योंकि मूर्ति क्या बोलती है कि भाई आपके अंदर को भगवान को जानता नहीं है, वो अमूर्त को, तो हम आपके अंदर के भगवान को रीडायरेक्ट करते हैं। पोस्ट क्या करते हैं? तो अंदर के भगवान के साथ जुड़ने का एक संक्षिप्त उपाय उन्होंने जो बताया, वो बोलते हैं 2 मिनट, 1-1.5-2 मिनट की प्रार्थना है, वो दूसरा सत्साधन है। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप सभी जीव मात्र में विराजमान हैं, आप सभी जीव मात्र में और विराजमान मुझ हैं में भी विराजमान हैं। और मुझ में भी विराजमान हैं। आपका स्वरूप आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा मूल स्वरूप मेरा मूल स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप है। शुद्धात्मा स्वरूप है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा आप भगवान, अनंत ज्ञान वाले, आप अनंत ज्ञान अनंत वाले, दर्शन वाले, अनंत दर्शन वाले, अनंत सुख स्वरूप अनंत सुख और अविनाशी हो। और अविनाशी हो। मैं आपको मैं आपको अभेद भाव से अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण ज्ञानता के मुझसे जो दोष या गलतियां हुई हैं, मुझे जो दोष या गलतियां उन हुई सभी हैं, को आपके समक्ष जाहिर करके आपके समक्ष मैं जाहिर क्षमा करके प्रार्थना करता हूँ। क्षमा प्रार्थना मुझे करता क्षमा करिए मुझे क्षमा और फिर से ऐसे दोष ना करूं, और फिर से ऐसे दोष ना ऐसे करूं। मुझे शक्ति दीजिए। ऐसी मुझे शक्ति हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा आप भगवान, ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें मुझे मुझे हमें हमें आपके साथ आपके साथ सभी भेदभाव छूट जाए सभी भेदभाव और हम छूट आप में और हम अभेद रूप से अभेद रूप से तन्मयाकार रहे, ताकि आपके अनंत गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का आप अनुभव कर सकें। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे साधन हैं, जब तक आपको पूरी प्राप्ति नहीं है तो ये कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक, तो ये 5वें सत्साधन में से तीसरा सत्साधन है दादा भगवान का असीम जी का। उसमें हम उनका या किसी का असीम जी का नहीं करते, अपने अंदर के जो भगवान है दादा भगवान, उनके साथ जुड़ने के लिए एक स्वरूप कीर्तन भक्ति है। 10 मिनट बोलते हैं तो जैसे ताल, वो अपने घर में हम महीना बाहर गए तो ताल अपना जो स्विमिंग पूल है उसमें अलगी आ जाती है ना, लिल सब, उसको हटाते हैं तो कैसा साफ हो जाता है। ऐसे 10 मिनट बोलने से अंदर के भगवान के ऊपर के आवरण हटते हैं तो अंदर का शुद्ध आनंद चालू होता है और सभी वो शांति दूर हो जाती है। और 50 मिनट यदि बोलेंगे तो अंदर के भगवान का हमें अनुभव चालू होगा। तो ये 2 मिनट बोलते हैं, फिर प्रसादी के लिए ओके बुलाओ। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।